ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੂਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੂਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਰਸ ਬੁੱਲਾ, ਉਹ ਬਾਹੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਬਾਹੂ ਲਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਲੋ 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 ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਲੋ ਹਲੋ ਵਿੰਗਾ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਵਿੰਗਾ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਚਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। We are starting the next most important, that is valedictory session. Is everybody ready? यार मैंने सुनाई नहीं दे रही थोड़ी आवाज। Is everybody ready? नहीं, मजा नहीं आया। एक बार जोरदार ताड़ियां बजा दोगे तुसी सारे प्लीज? वाओ, ब्यूटीफुल। इस तो पहला कि साडा सैशन स्टार्ट होए ना, मैं पर्सनली जिन्नी साडी लेडीज़ जेंट्स खड़े ने जेडे सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੌਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ एग्जैक्ट 1 मिनट ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਜਾਂ ਬੈਠਦੇ ਵਕਤ ਫਟਾਫਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਸਚ ਨੋਇਜ਼ਸ, ਆਲਰਾਈਟ? ਇਜ਼ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਅਗਰੀ? ਕਿੰਨੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ। ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ओवेशन ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। the honorable governor of Punjab। 3 2 1। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे
जय 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 हे 2047 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਹੈ ਐਂਡ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਕਲੇਵ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਐਮੀਨੈਂਟ ਆਥਰ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਆ ਕੇ Okay, so before than that, ladies and gentlemen, I'd like to request Shri Vikramjit Singh Ji Sani Ji, the Member of Parliament, to kindly honor our Honorable Governor of Punjab and Administrator UT Chandigarh, Shri Gulab Chand Kataria Ji. एक बारी जरा जोरदार तालियां हो जान, ladies and gentlemen. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਔਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੀ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਆਥਰ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕਨਕਲੇਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ परम सत्कारयोग गवर्नर पंजाब श्री गुलाब चंद कटारिया जी, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन दे मुखी विक्रमजीत सानी जी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के वाइस चांसलर प्रोफैसर रेनू विग जी, रजिस्ट्रार साहब ते बहुत ही प्यारे दोस्तों, इस मौके ते मैं अपनी गल सुरजीत पात्र नाल शुरू करना चाहांगा। ये पंजाब निरा जोग्राफिया नहीं, ये पंजाब निरा जोग्राफिया नहीं, ये एक गीत, एक रीत, इतिहास भी है, एक विचार भी है, गुरुआं ऋषियां सूफियां सिरजाए एक फलसफा सोच एहसास भी है। लखां झखड़ां तूफानां चों लंघिया है, इहदा मुखड़ा कुछ कुछ उदास भी है, एक दिन शान इहदी सूरज वांग चमकू, मेरी आस भी है अरदास भी है। तुसीं जिथे भी जाओ एक सवाल का सामना अक्सर तुहानूं करना ही पैंदा, वो सवाल है कि पंजाब का की बनेगा। मेरा अक्सर एको ही जवाब हुंदा कि पंजाब का उही बनेगा जो पंजाब के पिंड का बनेगा ते पंजाब की यूथ का बनेगा। पंजाब की डेस्टिनी है जिहड़ी वो सियासी दफ्तरां दे विच नहीं लिखी जानी, वो लोकां दीयां हार्ट बीट्स ते यूथ दे सुपनियां चों लिखी जानी है। फिर सवाल आ जाता कि रास्ता की है। कल भी बहुत गल हुई, अक्सर असी कह जाते हैं कि पंजाब मर रहा। जिहड़े लोग कहते हैं पंजाब मर रहा, ठीक ही कहते होने ने, क्योंकि पंजाब नूं आदत है मर मर के नवीं तरह जीण दी। लोग तो कहते सी 47 के पंजाब मर गया,
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਯੂਥ ਦੀ। 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ, ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੇਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਉਸ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ 100% ਐਮਪਲੋਇਡ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਨਪੁਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਸੋਇੰਗ ਤੇ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਖੇਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਖੇਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ 2047 ਤੱਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈਣਾ। ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਲਾਂਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਹਰ ਘਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਕਲੀਨ ਫੂਡ, ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਮੀਨਸ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਮੀਨਸ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ, ਕਲੀਨ ਫੂਡ ਮੀਨਸ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 60,000 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਦਮ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਹੈ ਯੂਥ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਯੂਥ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿਰਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਲਰਨਿੰਗ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਟਿਗਲਿਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੋਬਲ ਲੌਰੀਏਟ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ, ਉਹ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਲਰਨਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-4 ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10-15 ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਟੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, 2047 ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਗਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਮਲਟੀ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕਿੱਤਾ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਆ ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਟਰੈਂਥਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? 2047 ਛੱਡੋ, 2037 ਛੱਡੋ, 2027 ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਫਿਊਚਰਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਔਰ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਚਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, 3 ਚੈਲੰਜ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਨੰਬਰ 2 ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਨੰਬਰ 3 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ AI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਲਿਊਸ਼ਨ?
एनवायरनमेंट क्राइसिस आ जिहड़ा वो नैगेटिव चीज़ नहीं है। उन्हें दुनिया नूं दस दिता कि जे बचना तो अपनी हौमे तो बच, जे तैनूं कोई खाएगा तो तेरी हौमे खाएगी, तेरी लालसा खाएगी, तेरी हवस तैनूं खाएगी। तो इहदा इलाज आ जिहड़ा गुरु नानक साहब साडे सामने लैके आउंदे। इस करके जे इस वेले दुनिया की जिहड़ी सर्वाइवल आ उहदा इक्को ही तरीका रह गया, जिस तरीके तो बिना दुनिया सर्वाइव नहीं कर सकती, उहदा नाम है वो मैं संसार ने बड़ी बार टर्निंग, मैं 2 मिनट हाँ मैं खत्म कर लगा। संसार ने बड़ियां टर्नस देखियां, जिहड़ी टर्न इस वेले दुनिया की जरूरत आ, जिहड़ी मनुख नूं मनुख की हवस तो बचा सकती आ, वो है एथिकल टर्न। मनुख दे सामने जिहड़ी AI आ, वो एक मानवता का बच्चा, उन्हें वड्डे होके बड़ा विलन बनना या बड़ा हीरो बनना, ये इस गल के उत्ते डिपेंड करता कि ये जिहड़ी मानवता वो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की परवरिश किस तरह का करती है, उन्होंने किस किस्म का माहौल प्रोवाइड करती है, उन्होंने किहो जिहे क्वेश्चनस पुछदी आ, वो तो किहो जिहे काम लैंदे आ। सो ये जिहड़ा संसार आउण वाला, इनू AI का संसार ना कहो, इनू एथिकल संसार कहो, एक एथिकल टर्न का जमाना। और वो एथिकल टर्न आ जिहड़ी, उहदे जिहड़े बीज ने वो सिर्फ पंजाब तो या हिंदुस्तान तो ही उगर सकते हैं। धन्यवाद। एक बारी जोरदार तालियां होनी चाहिए साडे श्री अमरजीत अग्रवाल जी दे वास्ते। लेडीज़ एंड जैंटलमैन, हुण समा आ चलिया कि हुण असी कंकलूडिंग रिमार्क्स लेना चाहांगे साडे सत्कारयोग श्री विक्रमजीत सिंह जी सानी वालों, विच इज़ मैंबर ऑफ पार्लीमेंट एंड whom we proudly know as the proud son of Punjab। एक बारी जोरदार तालियां। Honorable Governor Sahab, His Excellency Shri Gulab Chand Kataria ji, Madam Dr. Mrs. Renu Vig, the Vice Chancellor, Professor Dr. Amarjeet Garewal ji, Registrar Sahab, distinguished guests, esteemed panelists, and delegates who have come in large numbers, exceeding our expectations over 2,000, and my dear youth, Dehe Shiva Var Mohe Ehe, Shubh Karmante Kabhu na taru और स्यों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, जब आव की औध निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरूं। With these words, Excellency, Honorable Governor साहब, आज शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी की भी पुण्यतिथि है, उनका जन्म दिवस है। मैंने सुबह भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए तो मैंने ये बात इन्वोक की थी कि ऐसे हमें सरोरना प्रेत बनते हैं। पंजाब क्या था, पंजाब विजन तो हम सोच ही रहे हैं, वी आर एक्स्ट्रापोलेटिंग द पंजाब फर्दर, बट लेट्स गो बैक एंड डू सम इंट्रोस्पेक्शन। पंजाब कश्मीर से सिंध तक था, ये पंजाब था। सेकुलरिज्म था, उसमें तब फ्रेंच आर्मी जनरल थे, फ़कीर अजीज़ुद्दीन। इतनी कॉस्मोपॉलिटन सेकुलर सोसाइटी। और एक्सेलेंसी जी, अभी हम एक दिन में साहिब श्री गुरु नानक देव जी का पूर्व भी मनाने जा रहे हैं। डॉक्टर अमरजीत गरेवाल जी ने
बहुत अच्छी इन्वोकेशन बात की, सोशलिज्म की इन्होंने बात की। मैं भी डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाता हूँ, वहाँ मेरा यही सब्जेक्ट होता है, सोशल एंटरप्राइज। मैंने एडम स्मिथ को भी पढ़ा है, लेसियस फेयर पॉलिसी थी, मैडम इंटेलेक्चुअल हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी भी पढ़ी, फिर इकोनॉमिक्स में बच्चे बैठे हैं, एडवर्ड शपीरो को भी पढ़ा, फिलिप कॉटलर भी पढ़ लिया MBA में। पर जो गुरु नानक देव जी ने ना, इन्होंने ठीक कहा, 3 असूल जो गवर्नर साहब गुरु नानक ने दे दिए, बहुत छोटी सी बात। कई बार मैं कहता हूँ अपने कोलीग्स को कि कॉमन सेंस इज़ मोस्ट अनकॉमन थिंग इन वर्ल्ड। उन्होंने कोई ज़्यादा बड़ी बात, उन्होंने कहा किर्त करो, मेहनत करो, किर्त करो। अभी मैंने गीत भी गाया, अब देख रहे थे आप, मेरे कीर्ति वीर पंजाबिया तेरी धन कमाई, तुसी हथ ना अड्डे सोहणिओ ना धौण चुकाई, तुसी जाके मुल्क बेगानिਆਂ विच टौर बनाई, ਉਹ मोह ममता ਦੀਆਂ मूरतां रब वर्गियां मावां, कूके अणख पंजाब दी कोई करो दुआवां। गुरु नानक देव जी ने कहा किरत करो, मेहनत करो। फिर उन्होंने कहा मेहनत कर ली, क्या करो, बंड छको, बांट के खाओ। अगर हम में से हर आदमी सोच ले कि मैंने अपने 5-7 बंदे, कोई ड्राइवर, कोई अपने दफ्तर के, उनका ही मैंने ध्यान रखना है, बच्चों की एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, दुनिया में ख़त्म हो जाएगी गरीब। फिर उन्होंने कहा नाम जपो, मेडिटेट करो, क्योंकि रिलीजन अगर आपका सोल प्रिंसिपल है, वहाँ से आपको एथिक्स में 3 प्रिंसिपल ही उन्होंने कहे। और जहाँ से हिज एक्सीलेंसी मैं बहुत प्रभावित हुआ। ज़िंदगी में बहुत लोगों की छवि प्राप्त हुई। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सार्क CCI का मेरे को चेयरमैन बनाया। हमने 8 मुल्क सार्क फ्री ट्रेड और सार्क साफ्टा वीज़े भी हटवा दिए। तो पर्सनैलिटी छू जाती है। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, 94 में जब लिबरलाइजेशन आई, मैंने ट्रेड सर्विस से रिज़ाइन करके अपना काम, ये भी लिबरलाइज पॉलिसी जैसे स्टार्टअप है। लेकिन मैं गवर्नर साहब को मिला 10-15 दिन पहले, तो इनकी छवि से इतना प्रभावित हुआ। एक बात मैंने इनको नहीं कही कि जैसे शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह है ना, उनके समकाली, क्योंकि ये उदयपुर से हैं, उदयपुर में मैं जाता हूँ तो मैं अगर गलत नहीं हूँ, वहाँ महाराणा प्रताप का भी चित्तौड़ में, तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये लोगों ने भारत का वीर रस इतिहास बदला। इन्होंने एक बात कही जो मैं बहुत देर तक सोचता रहा। मैंने इनको स्किलिंग का मेरा ड्रीम बताया कि मैं भी नौकरी कभी ढूंढता था, मेरा पैशन है पंजाब का हर युवा चलो MA करे, MBA करे, जो भी स्किल कर ले, बस रोटी से वंचित ना रहे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो हम पिछले मैं 15-20 साल से लगाऊँ गाँवों में, भारत सरकार ने मेरे को नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में 8 साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे था। मैंने सारा स्किल देखा है, पर कहीं ना कहीं जो अभी भी मैं कर रहा हूँ कि स्किल फॉर जॉब होनी चाहिए, उसमें मैच मेकिंग जो हम कर रहे हैं, सारी इंडस्ट्री पंजाब की, गवर्नर साहब आपके सामने हैं, मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया से उनके लोग हैं, लुधियाना इंडस्ट्रियल एरिया के फीकू, सीकू, कुलार साहब, आहूजा साहब, खरबंदा जी। तो कहीं ना कहीं जो स्किल पर इन्होंने एक स्टेप आगे ली, इन्होंने मेरे को रोका, इनको याद होगा, इन्हें कहा विक्रम जी ये ड्रग, मैंने इनको कहा कि अरुण जेटली जी जाते जाते हमें स्वामी विवेकानंदा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर देंगे, वो बलजीत जोल बैठी है। मैंने खालसा कॉलेज में 10,000 बच्चे हमने इकट्ठे करे, 10-15 साल हो गए, उनको हमने से नो टू ड्रग्स कराया। तो जेटली जी मेरे भाई समान थे, सुषमा जी बहन थी, उन्होंने कहा विक्रम यार ये कुछ चला नहीं पाएगा, आप इसको चला, हम चला रहे हैं सिद्ध। इन्होंने फिर कहा कि भाई मैं गवर्नर साहब ने सामने बैठे, इन्होंने कहा मैं ड्रग्स पे काम करना चाहता हूँ, मेरे को मैप दो, आप मेरे को ब्लूप्रिंट लाओ, मैं कोई भी मीटिंग कैंसिल कर दूंगा, 2-3 घंटे मैं आपके साथ बैठना, आप मेरे को पूरा बताओ कहाँ से आया। मैंने इनको बहुत बताया, बॉर्डर था,
जॉब्स नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ड्रोन से आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी है, इसका आगे गेम प्लान क्या है, उनको डी एडिक्शन कैसे करानी है, उनको रिहैबिलिटेट कैसे करना है, फिर उनको स्किलिंग कैसे करानी है। और तो भावुक हो गए। इन्होंने कहा इसमें जो भी कैंपेन हम चलाएंगे राजभवन से फ्लैग ऑफ करेंगे। अब हम ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं कि हम जनवरी में, फरवरी में इनके कर कदमों से एक मूवमेंट चले, राजभवन से उसका फ्लैग ऑफ हो। हजारों यूथ हर शहर में, हम मैराथन भी कराते हैं, हम उसके से नो टू ड्रग्स, स्किल फॉर जॉब, यहाँ से कारवां चले, लुधियाना जाए, पटियाला जाए, जहाँ जहाँ हमारे वर्ल्ड स्किल सेंटर खुले हुए हैं, ITIs अडॉप्ट है, जलंधर जाए, अमृतसर। फिर उन्होंने कहा कि जो ग्रैंड वहाँ हम 10 या 15 हज़ार यूथ को इकट्ठा करेंगे। इन्होंने कहा कंक्लूजन पे भी मैं आऊँगा। इनकी सोच देखिए, इनको चार्ज लिए, भाई अभी तो आए हैं, मैं इनको मिलने गया एज ए कर्टसी, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हुआ। ही इज़ रियली ए क्रिस्मेटिक लीडर, जो बहुत कम पंजाब की खुशकिस्मती में समझता हूँ। पंजाब को भेदभाव, मैं सुबह भी बोल रहा था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे मैंने बहुत काम किया है, मैं ट्वीट करता रहता हूँ। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन पास हुआ जब मैं पढ़ता था इधर पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब, हमारे सामने ही बना। कोई भी सोच बुरी नहीं है, स्टेट्स को इख्तियार दे दो, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कॉर्डियल होगा तो काम चलेगा। इलेक्शन हो जाती है 5 साल में। द रिलेशनशिप, अभी डॉक्टर अमरजीत गरेवाल जी ने एक और बात कही जो कल हरपाल चीमा जी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी करी। आज सुबह हमने बहुत बुद्धिजीवियों को इसमें कॉन्फ्रेंस में जोड़ा, एक्सीलेंसी। आज एक चीफ सेक्रेटरी कर्नाटका के चिरंजीव सिंह, वो आ गए इधर, रिटायर हो गए, उन्होंने वीडियो पे उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कर्नाटका में मैं जब चीफ सेक्रेटरी था, मैंने फिस्कल डिसिप्लिन बिल, कुछ फिस्कल डिसिप्लिन बिल कोई मैंने पास करवाया, जिसमें जितनी 33 आइटम्स थी कॉन्करेंट लिस्ट की, उसमें पंचायतों को अधिकार दे दिए। यही बात हरपाल चीमा जी ने कही कि अभी हमारा पिरामिड स्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, हम बजट चंडीगढ़, दिल्ली बैठ के बनाते हैं। इट शुड नॉट बी द वे। ये जो गरेवाल साहब ने कहा, जो चिरंजीव जी ने कहा, पंचायत से बजट करो। फैक्ट्री की प्लानिंग कैसे होती? मैं मैनेजमेंट ट्रेनी था जब मैंने MBA करी DCM में, टेक्सटाइल मिल में। वो पहले हर डिपार्टमेंट बजट भेजता है, कोई भी पंजाब यूनिवर्सिटी कोई भी डिपार्टमेंट बजट भेजता है, फिर उसको कंसोलिडेट किया जाता है, फिर उसका बजट बनता है। तो मैं गवर्नर साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक्ट स्टडी करवा के मैं भेज दूंगा, फिस्कल डिसिप्लिनरी जो एक्ट है, क्योंकि कोई फिस्कल डिसिप्लिन हमें लाना पड़ेगा। 3,28,000 करोड़ का कर्जा है, वो ये चलता रहेगा, ब्लेम गेम। IK गुजराल जी, क्योंकि ये वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ही बनवाई 2000 में, जब वो प्रधानमंत्री थे, उनके घर पे ही बनी। कुलदीप नैयर जी थे, मैं था, बड़े लोग थे। उन्होंने पहला काम हमें दिया कि अक्रॉस द बॉर्डर आप जाओ। उनके जेलम में गए, लाइब्रेरी बुक्स भी दी, बड़ा काम चला। बॉर्न होम में नवाज शरीफ, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बस में भी मैं गया, क्योंकि पड़ोसी हम चेंज नहीं कर सकते। तो फिस्कल डिसिप्लिन वो जब आए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने, वो एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पंजाब का तब पता नहीं 800-900 करोड़ या जितना भी था वो डेट रिलीफ दिया। पुष्पा गुजराल यूनिवर्सिटी बनी। तो फोरसाइटेडनेस थी, हमें फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। बहुत सी बातें आज फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर ने कही कि ठीक है, डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल प्रोमिसेस हैं, बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट देंगे, किसानों को देंगे, ठीक है, अब इट इज़ ए डेमोक्रेसी, पर उसमें रैशनलाइजेशन, बैलेंस रखना पड़ेगा। उन्होंने अच्छा दिया कि हम जो थर्मल पावर 4 रुपये 70 पैसे बना रहे हैं, हम इसको सोलराइजेशन में 3 रुपये में कन्वर्ट करें, ग्रिड की बिजली, प्राइवेट यूनिट तो लगा रहे हैं। तो ऐसी हमें नई चीज़ें लानी पड़ेंगी।
एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, कल से यहाँ चल रहा है, तो मैं अभी सोच रहा था ये कुछ कल्चर की बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि एग्री ही हमारा कल्चर है। पंजाब का कल्चर गैंगस्टर नहीं है, पंजाब का कल्चर बंदूकें नहीं है। गवर्नर साहब, एक तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, आज ही ना आप या 2-4 दिन में ऑर्डर निकाल दो, पंजाबी गाने, पंजाबी वीडियो। साहब ये वारिस शाह अभी गाने चल रहे थे, हम अपने लिटरेचर को भूल के पंजाबी कोई वीडियो लगाओ, बंदूकें था, वो दारू दिए कि नशे दिए बंद बोतलें, तो मैं कहना नहीं चाहता, मतलब ऐसे लच्चर गाने, ये क्या है? कोई सेंसर बोर्ड नहीं, इससे हमारा नहीं, ये गैंगस्टर कहाँ से? हमारे तो 80s में 90 में कोई इतने गैंगस्टर नहीं, हुण वो हो रहा वो हो रहा, रोज लॉ एंड ऑर्डर दी प्रॉब्लम, मतलब वो कहाँ से? क्योंकि आप टीवी ऑन करो, यही गाने चल रहे सारा दिन, वो दैट इज देयर, तो यूथ इज इम्बाइबिंग दैट कल्चर कि वो कारतूस इत्थे पाए है, हमर जीप है, गॉगल लगे है, पिस्तौलां जेब च ने, चक दो, बट व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट पंजाबी कल्चर। आज हम एक बहुत भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं पंजाब कल्चरल हेरिटेज पे। कल वो आए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मैंने उनको बोला, मैं कहा आपको पता पटियाला घराना क्लासिकल म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक ठीक है, ढोल है, दलजीत दोसांझ ने बहुत अच्छा कर रहा है, वो भी हमारा फोक है, बुल्ले शाह, वारिस शाह, पर वी आर वेरी लर्नड कम्युनिटी, लर्नड रेस। खुशवंत सिंह जी, पटियाला घराना, मैंने कहा दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, पटियाला जो घराना था। तो एक तो ये लच्चर गाने और ये बैन हो, ड्रग्स का इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर में ये एक हम, क्योंकि सारी बातें लिमिटेड टाइम में नहीं की जा सकती, आपने वक्त निकाला है, इसमें हमारे इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ खरबंदा जी हैं और KPMG हमारे नॉलेज पार्टनर हैं। अगले 15 दिन में हिज एक्सीलेंसी जो इस कॉन्क्लेव में हुआ, ये चिंतन बैठक है, गुजरात में ऐसी चिंतक बैठक नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू की थी, चंद्रबाबू नायडू भी करते थे, अगर मेरे को मैं गलती नहीं करता, जैसे इन्होंने कहा कि कोई बोल रहा था उन्होंने 2000, तो ये इसका हम एक वाइट पेपर डॉक्यूमेंट बन रहा है, KPMG के बहुत काबिल रितु जी और सारी टीम है, हम इसका ड्राफ्ट आपको भेजेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब को भेजेंगे, क्योंकि यहाँ जो कल 7 बजे तक इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, एक प्रॉब्लम हमने चीफ मिनिस्टर को बोला, हम इंडस्ट्री कैसे लाएं? ये कुलार साहब कहते हैं बाहर से लोग आते हैं, वो देखते हैं फोकल पॉइंट है, सड़क टुटियाँ, लाइटां खंबे जगदे नहीं, पानी उत्थे सीवरेज है नहीं, तो वो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन कराइए कि उन्होंने उतो राती रूती ले जाके गड्डी घुमा के तो होटल च ले आइए। तो मैंने उनको बोला 5 फोकल सेंटर उन्होंने एग्री किया है, चलो एक ही बन जाए, कोई कन्वेंशन सेंटर नहीं है, वो हमारे रुपिंदर सचदेवा जी वो पाइट कोई एग्जीबिट, ऐसा आप ध्यान दीजिए। एक तो आई पर्सनली फील देयर हैज़ टू बी अ बेटर कोऑर्डिनेशन, there seems to be a dichotomy between the executive and legislature which you can bridge up। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपके कार्यकाल के दौरान, अमृतसर में भी कन्वेंशन सेंटर की जगह पड़ी है, 5-10 साल हो गए, लुधियाना में एग्जीबिशन सेंटर पड़ा है, मोहाली पर, इसको आगे ये चीज़ें फिर लोग याद रखेंगे आपकी लेगेसी के लिए। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा मसला है, किसान। अब हम कहते हैं राइस से आपने भी बहुत इंटरवेंशन किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मेरी आपसे बात भी हुई, क्योंकि ये मिलजुल के काम होता है, ब्लेम गेम से तो कोई झोना नहीं उठेगा। अब उसमें कई प्रॉब्लम है, PR 126 लगा दिया, वहाँ फूड कॉरपोरेशन की बात भी समझनी है, हमें शेलर्स की बात भी समझनी है, बट वी हैव टू गो टू द रूट कॉज कि ये उठा क्यों नहीं बासमती, स्टोरेज प्रॉब्लम आ गई, फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज है, क्यों आई? ठीक है, क्रिटिसाइज करना तो बहुत इजी है, लेकिन वी हैव टू सी हाउ ए करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। और क्रॉप रोटेशन की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए आप भी जो सर मिलेट्स हैं, मैंने CM साहब को भी ये सजेशन दिया, मिल आपका पता नहीं राजस्थान में क्या है, अब हमें तो, मेरे को तो 3 साल हो गए कोविड, गेहूं भी बंद है, दूध भी बंद, किसी डाइटिशियन डॉक्टर के पास चल जाओ, पहले कहता है ये ग्लूटेन छोड़ दो, लैक्टेस छोड़ दो, फिर खाएं क्या? अब रागी मिलती है, पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर ने मिलेट का खाना शुरू करा दिया है। अगर दलिया ही खाना है, ज्वार खाना है, बाजरा खाना है,
तो उस पर भाई एमएसपी वगैरह दे दो को किसानों को कुछ उसको पता तो हो कि भाई हाँ भी मैं गिराऊंगा। यहाँ साहब आपने पता नहीं अब जो है सर्दियाँ आ रही हैं, कीनू इस बार मैं आपके गौरव जी जो नाम है, कीनू का जूस पिलाओ सर को। सर ऐसा सन वो क्या है, संतरे जो कैलिफोर्निया भूल जाएंगे, कोई उसमें क्या कीनू का जूस है। लेकिन वो किसान इतना डिस्ट्रेस में हो गया, कीनू का साइज छोटा हुआ। मैं गया, वो कहते जी एक डाल पे पता नहीं 5 लगने चाहिए थे, 7 लग गए। अब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देखना है, वो लोगों ने अब कीनू की फसल तोड़ के फिर राइस लगाना शुरू कर दिया। तो हॉर्टिकल्चर में पंजाब का बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे सुबह सीएम साहब बता रहे थे, लीची है, कीनू है, ये हमारे, इसको हम तभी प्रमोट कर सकते हैं हमारी एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर पॉलिसी हो। नई एग्रीकल्चर पॉलिसी बनी है, उसको हमें रैशनलाइज करना होगा। कहना तो बहुत आसान है कि किसान को जी क्रॉप रोटेशन कर दो, वो बेचारा कर्जे के बोझ में है, वो गेहूं और उसको कैसे छोड़ेगा कि रागी उगाओ, ज्वार उगाओ, बाजरा उगाओ। इंडस्ट्री के लिए कई चीज़ें हुई हैं और मैंने 2-3 आपको बोली हैं। स्किलिंग के लिए ये जो सबसे बड़ी एम्प्लॉय प्रॉब्लम है यूथ, आज हमने एक्सीलेंसी 1.5 घंटा स्टूडेंट से ही बात की। अभी लंच भी ये सारे यूथ ने कॉपरेट किया, 3 बजे तक बेचारे भूखे बैठे रहे। हर एक बच्चे ने स्किल के बारे में बोले। इन्होंने हमसे सवाल किए कि भाई हम एमए कर रहे हैं, हमें नहीं पता आगे अब नेक्स्ट ईयर करना क्या है, हमें खुद नहीं पता था। मैंने प्री मेडिकल किया, टॉपर था, एमबीबीएस में दाखिला ले लिया, फादर को पैरालिसिस हो गया। वहाँ से वो जैसे वो लीडो वाली गेम होती है ना, वो क्या वो चलती थी आगे, कंचे वाली गेम, उठो टक्के लगी, उधर चले गए, फिर ठीक हो गए, आर्ट्स में चले गए, पता ही नहीं था। तो ये अभी तो एआई है, जैसे इन्होंने गरेवाल जी ने कहा डिसेमिनेशन है, तो हमें स्किलिंग पे बहुत जोर देना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ज़ाती तौर पे 10 ITI अडॉप्ट करे हैं। अभी भारत सरकार ने मेरे को नेशनल अप्रेंटिसशिप काउंसिल का पिछले हफ्ते वाइस चेयरमैन बनाया है। मैंने इंडस्ट्री को भी बोला कि ये बच्चों को, आज हमने बैंकिंग सेक्टर में अपने बच्चों को 500 जॉब ऑफर करी है। बहुत से कोर्सेज हैं, बच्चों ने भी कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी में आके आप हमें, तो स्किल इज़ द ओनली आंसर टू रिजॉल्व दिस। और उसमें मैं फाइनेंस कमेटी में हूँ पार्लियामेंट्री की, मैंने इनको अवगत कराया कि जो भारत सरकार की स्कीमें हैं स्टार्टअप इंडिया, उसमें हर यूथ को 10 लाख से 50 लाख रुपए लोन लेने का अधिकार है। यू हैव द राइट without giving any collateral, but yes, you have to register a DIPP website. You should have a bankable project report. मैंने पार्लर खोलना है, मैंने IT का सेंटर खोलना है, मैंने मोबाइल रिपेयर की शॉप खोलनी, मैंने जो भी आपका फास्ट फूड खोल, वट एवर कोडिंग, तो उसके लिए आप उसमें जॉब से भी अच्छा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए, स्टार्टअप बनिए। और पानी की मैं आपको कहूँगा कि आप जैसे क्रिस्मेटिक लीडर ब्रिज बन सकते हैं स्टेट और सेंटर में। हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा उतनी छवि नहीं है को बात। आप अगर कहेंगे ना, आपकी बात में वजन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी सुनेगा। अगर आप पंजाब की बात करेंगे, ये गुरु महाराज की धरती है। अगर आपने पंजाब के किसानों का, इन्होंने 2 ही कहा, किसान और यूथ का कुछ भी सवार दिया, ये गुरुओं की धरती आपको इतना आशीर्वाद देगी, आपकी 7 पुश्तें जो हैं वो खुशहाल हो जाएंगी, अमर हो जाएंगी, ये मेरा मानना है। फ्लाइट्स का एयरपोर्ट तो बन गए, मोहाली में भी आप आते हैं, अमृतसर में भी है, पर सर ये आपकी इंटरवेंशन चाहिए। इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं है। अब वो कार्गो वाले, लूलू वाले मेरे दोस्त हैं, हमें पद्मश्री एक ही दिन मिला था, यूसुफ अली, जो लूलू 250 स्टोर हैं, उनको वो कहते हैं हम तो तैयार हैं पंजाब से सब्जियां भेजो, फ्लावर भेजो।
मैं मतलब पैरिटी नहीं है, फ्लाइट ही नहीं जा रही, तो मिडल ईस्ट सारा भरा पड़ा है, मार्केट है हमारी साहब। इसको इंटरनेशनल फ्लाइटें पैसेंजर की, कार्गो की चंडीगढ़ से शुरू कराइए, मोहाली और अमृतसर। ये तो आपके एक दो आप हफ्ते के 2-3 मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपके सर गुण गाएंगे लोग, ट्रेड आपको पूजेंगे, मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। आप ये फ्लाइट्स का जो है शुरू और एक आखिरी बात, क्योंकि आपको सुनने आए हैं, रिपोर्ट तो भेज देंगे कि जब सार्क का था ये वाघा बॉर्डर खुला था, हमें भी दुख है जो कश्मीर में होता है, पंजाबी ज़्यादा मरते हैं। गलवान में अभी वो 22 साल का लड़का, उसकी दाढ़ी भी नहीं फूटी, शहीद हो गए। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई हम भी पीछे बैठ गए तो दैट मीन्स वी आर फॉलिंग इनटू द प्रे ऑफ द मिलिशियस डिजाइंस ऑफ दोज मिनिस्क्यूल फेलोज हु वांट टू क्रिएट ट्रबल। अब ये जैसे इंडो कनेडा में, सर मैंने सारी रिसर्च की, हमारी टीम, कोई किसी सिख ने, मीडिया वाले बैठे हैं, किसी सिख ने किसी मंदिर पे अटैक नहीं किया साहब। हमारा वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन का टोरंटो में चैप्टर है, ब्रैम्पटन में चैप्टर है, ऑटवा में चैप्टर है, मॉन्ट्रियल। मैंने कहा हुआ क्या? वो कहते जी ठीक 2-3 पंजाबी थे, सिख थे, वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि इंडियन काउंसलेट ने एक टेम्पल में फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया बुजुर्गों को कार्ड देने का। बात मंदिर गुरुद्वारे की नहीं थी, प्लीज भर दिया आपने सोशल मीडिया रात को। हरियाणा वाले कुछ कह रहे हैं, कमाल है यार। मैं हेट स्पीच का बिल लाया हूँ, मेरा बिल भी आज एडमिट हुआ है। मैंने बड़ी मुश्किल से हमारे पिता समान जगदीप धनकर जी को बोला, मैं कहा साहब हेट स्पीच बंद कराओ। सर आपको पता है सिम कार्ड लेना हो ना तो नहीं मिलता, आधार कार्ड चाहिए सिम कार्ड लेने के लिए। ट्विटर का अकाउंट बनाने के लिए कोई सिम कार्ड नहीं चाहिए। आप जाओ 10-15 फेक अकाउंट यहाँ खोल लो, किसी के मेल से, किसी कॉफ़ी शॉप से, और फिर पंजाबी च कहते ठोकी जाओ, सवेर तक पर लो ले आ जाओ। सब ये इतना उसमें हो रहा है हेट स्पीच, इसलिए ये नरेटिव ही गलत है। हमारा तो इतना प्यार है, इसलिए वापस मेरे हिसाब से हमें वाघा बॉर्डर स्टेजेस पे ट्रेड के लिए खोलना चाहिए। आप विचार विमर्श कर लीजिए, गृह मंत्री जी से बात करिए, हम भी प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि पंजाब ना लैंडलॉक्ड स्टेट है। कांडला 1500 किलोमीटर है, फ्रेट सब्सिडी है नहीं। पंजाब का एक ही ये रास्ता था ट्रेड करने का, अफगानिस्तान, ईरान। अब इंडिया तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ, फर्टिलाइज़र सारा ये वहाँ से आता है, बताइए शॉर्टेज ही ख़त्म हो जाएगी फर्टिलाइज़र की। तो वाघा बॉर्डर पे मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। और एक जो भी हमारी बार बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं एग्रीकल्चर की, उसके लिए मैंने सीएम साहब को भी बोला है, जैसे ये अब राइस का चल पड़ा कि भाई इसके लिए आप एक कोई कंसल्टेटिव एडवाइजरी काउंसिल बना लीजिए एग्रीकल्चर पे, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेडर्स के, राइस शेलर के, फूड कॉरपोरेशन वाले तो आपके ही हैं, फूड सेक्रेटरी भी आपके, हम भी आ जाएंगे या दिल्ली बुला लेंगे। भाई बैठ के बात कर लो, ऐसे ही सुबह उठ के मीडिया में, मतलब ठीक है वो एक अलग बात है, आप ज़रूर उसमें राजनीतिक रोटियां वगैरह सेकें। मैं तो कहता हूँ सॉकर की टीम में सारे बंदे चाहिए, अब हम वो काम नहीं कर सकते, कोई सेंटर फॉरवर्ड चाहिए, कोई गोलकीपर चाहिए, ठीक है। पर ये आप बाय जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको आप लीड करिए। सारा पंजाब आपके साथ है, सारे बुद्धिजीवी आपके साथ हैं, सारी ट्रेड इंडस्ट्री आपके साथ है। भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा, पंजाबी समझ ही लेंगे, वैसे तो मैं हिंदी में ही बोला। भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा, गंगा बनाउंदे देवते आशिक बना सके ना, पानी चनाब दा, आओ पतझड़ तो बचाइए धरती पंजाब दी, खेड़ियां विच ले आइए मुड़ फुल गुलाब दा। पंजाब इज़ लाइक ए रोज़ फ्लावर एंड ए कोहिनूर। महाराजा रणजीत सिंह जी ने कोहिनूर फतेह किया था, आज उनकी जन्म शताब्दी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं चाहूँगी एक बार ज़रा ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए विक्रमजीत सिंह सानी जी के लिए।
और एक बात मैं नहीं सर, कुछ प्रोटोकॉल होता है सर, फॉलो करना ज़रूरी है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितनी बार भी मैं विक्रमजीत सिंह साहनी जी को मिली हूँ ना, जितनी बार भी मैंने इन्हें बोलते हुए सुना है, तो मेरे मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि मैं एक बार ज़रूर कहूँ कि इनकी पर्सनालिटी, इनका ऑरा, इनकी पॉजिटिविटी कुछ ऐसी है कि ये ऐसी सोच रखते हैं कि मैंने सुना है ये कहीं पे कि खुद को जला ले तभी रोशनी मिलेगी तुझे, मुस्कुरा तो ऐसे कि दुनिया मुस्कुराए, अकेले मुस्कुराने में क्या खुशी मिलेगी तुझे। थैंक यू सर। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अब मैं दरखास्त करना चाहूँगी हमारे सम्मानजोग सम्मानीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी से, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूटी चंडीगढ़, टू काइंडली स्पीक अ फ्यू वर्ड्स एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी की तरफ से। थैंक यू। वाहे के गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। सीख रहा हूँ पंजाबी। अभी क्या है कि दोनों भाषण सुने पर मैं बहुत उसमें से कम समझ पाया। देखो क्या, मेरी आदत है, मैं सच्चाई को छुपाता नहीं हूँ। जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करो और आगे उसमें सुधार करो, तो ही रास्ते हैं। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये 2047 में पंजाब कैसा हो, इस विषय पे आपने यह जो एक तरह से सम्मेलन में सब लोगों के विचार जानने का कोशिश किया, तो सबसे पहले तो मैं आयोजक साहनी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज की आवश्यकता का विषय पर आपने सामूहिक विचार करने का प्रयत्न किया और इस 2 दिन के डिस्कशन में जो कुछ भी मोटे मोटे बिंदु निकल कर आए हैं उसको संकलित करके हमें भी भेजें, सरकार को भी भेजें कि हम लोग भी उसमें आगे क्या कर सकते हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ की कुलपति श्री रानू विजय जी, प्रोफेसर वाईपी वर्मा जी, और अभी जो थोड़ा समझ पाया, थोड़ा कोशिश की, पर अमरजीत सिंह जी रेबल एक तरह से वास्तव में लेखक ही नहीं है। आपने जिन शब्दों का चयन किया और आपने गुरुवाणी से जैसे उसको जोड़ने का प्रयास किया, वास्तव में हमारा जो आधार है वही है। हम आज भी अगर विचारों से जुड़े हुए हैं तो उसी विचारों से जुड़े हुए हैं। सभी यहाँ पधारे हुए विद्वज्जन, सभी साथियों, वैसे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ, पर अनुभव से आप सब लोगों से सुन करके सीखने का प्रयास किया और जो मैं सीख पाया उसको ईमानदारी से लागू करने का प्रयास किया। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में आज का यह जो कार्यक्रम है, आप सभी का सामने खड़े होकर बहुत ही आनंद और गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि आपने इस पंजाब विजन 2047 की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल रहे देश को और पंजाब को आपने रास्ता चुनने का जो एक अवसर दिया। मैं सोचता हूँ कि कोई लक्ष्य तय करता है और उसको प्राप्त करने का जब प्रयास करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो मैं सोचता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने इस अमृत काल में एक नया विजन देश को देने की कोशिश की कि भारत 2047 में कैसा हो। भारत तभी होगा जब पंजाब 2047 अपना लक्ष्य पूरा करेगा, उसके बिना वो भी पूरा नहीं हो सकता।
हर राज्य का अपना महत्व है और सबको अपने अपने स्तर पर जो है ना विचार करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि मैं बचपन से जब से समझ आई है तब से मैंने यहाँ के महाराजा रणजीत सिंह जी को पढ़ा भी है और सुना भी है। उस समय जिस प्रकार की परिस्थिति में उन्होंने जिस प्रकार से इस देश, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो संघर्ष किया वो इतिहास में अंकित है। आज भी लोग उसको उतने ही आदर और ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपने याद दिला दिया, मैं तो याद नहीं था, सच बात कह दूँ कि वास्तव में ऐसे एक महापुरुष का आज जन्मदिन है। हम उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आपके मार्ग पर बढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। सफलता कितनी मिलेगी ये तो ईश्वर के हाथ रहेगा, पर हमारा प्रयत्न जरूर होगा। मैं सोचता हूँ कि एक क्षेत्र में नहीं, मैं जब पढ़ता था तो हॉकी के जादूगर को पढ़ा था। ध्यानचंद को जब बचपन में उस समय कॉलेज में पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि इसकी स्टिक में कोई चुंबक है, तो जब इसके हाथ में एक बार आ जाती है तो गोल ठोक करके ही छोड़ता है। तो बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ, इसका जांच करो यार, कहीं कुछ कमाल तो नहीं है इसमें। तो वास्तव में ऐसे जादूगर इस धरती ने पैदा किए हैं जिन्होंने आज नहीं, जब तक ये धरती रहेगी ना, ऐसा हॉकी का खिलाड़ी शायद देश में अब तक और दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो उसने कीर्तिमान स्थापित किया। उसकी जन्मभूमि है। मैं सोचता हूँ उस समय जो दौड़ की रेस में देखते थे मिल्खा सिंह को तो लगता था यार ये ट्रेन पीछे पड़ रही है, यह आगे जा रहा है। तो वास्तव में इस धरती की अपनी विशेषता है और उस विशेषता का कारण है गुरु परंपरा को जिस ढंग से इस धरती ने निभाया। मैं सोचता हूँ गुरुओं के बलिदान को आज भी जब याद करते हैं ना तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। कोई आरे से चीरा जा सकता है? कभी दुनिया ने आज दिन तक नहीं सुना होगा। और चारों बच्चों को देश पर वार के दे दे, ऐसी घटना कहाँ दिखाई देगी? और जब उसको आताई जो है ना, उसको दीवार में दोनों बच्चों को, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को चुन रहे थे तो एक एक ईंट रख करके पूछ रहे थे, बोलो कबूल है कि नहीं? कहा नहीं कबूल है, नहीं कबूल है। और जब छोटे भाई के गले में पहली ईंट आ गई तो बड़े भाई को मन में पश्चाताप हुआ, उसकी आंखों में इस बात पानी आ गया। तो उसने ललकार के कहा कि तेरी आंखों में पानी कैसे? उसने कहा इसलिए नहीं आया, मुझे इसलिए दुख है कि मेरे से तू बाद में आया इस धरती पर देश धर्म पर तू मेरे से पहले बलिदान हो रहा है, इसका अफसोस है। तो वास्तव में इस धरती की महानता को, और मैं सोचता हूँ जब देश भूखमरी की स्थिति में था 65 के युद्ध में, आपको हमको हिला दिया। हम सब लाल ज्वार खाते थे, कंट्रोल में लाइन में लग कर के 100 की लाइन लगती थी, तब कई 10 किलो और 5 किलो ज्वार मिलती थी लाल रंग की। ऐसे समय में 65 के जंग में जिस प्रकार से हमारी सेना ने कीर्तिमान स्थापित किया, अमेरिका ने धमकाया तेरा पेल 40 बंद कर दूंगा। एक छोटा सा आदमी, 5 फीटी आदमी, उसने कहा बंद करना बंद कर दे और सोमवार का व्रत की घोषणा की। आप देखो यार, आप और हम सब तो समझदार बड़े थे, जो समझ में आ सकता है। मैं जिस स्कूल में था उसका तीसरी का बच्चा भी सोमवार के दिन टिफिन लेकर के दोपहर में नहीं आता था। ये जागृति कोई पैदा कर सकता है तो व्यक्ति का कैरेक्टर कर सकता है। बिना कैरेक्टर के आप सिखाने का प्रयास करो, कुछ नहीं बनेगा। मैं सोचता हूँ कि उस समय 65 के युद्ध के बाद जिस प्रकार से पंजाब ने देश की अन्न की आवश्यकता की पूर्ति की, सारा देश ऋणी है आपका। और हम इतना अनाज पैदा कर पाए कि केवल अपनी भूख नहीं मिटाई, हमने अब दुनिया के देशों को भी भूख मिटाने का काम कर रहा है, वो ये धरती है। लेकिन समय के साथ एग्रीकल्चर में कई प्रकार के परिवर्तन चाहिए, क्योंकि हमने दोनों को ही बहुत महत्व दिया। इसलिए दिया कि उसकी एमएसएमई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, बाकी अन्य मिलेट पैदा भी करो तो अभी वो उसमें जुड़े हुए नहीं हैं।
अगर हम वास्तव में मिलेट पर चेंज करना चाहते हैं तो उनको भी हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में लाना पड़ेगा ताकि किसान सुरक्षित हो। और ये जो दोनों फसलें हैं ये पानी की बहुत अधिक मात्रा चाहते हैं और इसके कारण से धीरे धीरे धरती का पानी कम होता जा रहा है, एक चुनौती खड़ा हो गया। मैं सोचता हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बाकी सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें खेती के नए नए तरीके ढूंढना पड़ेगा कि छोटी होल्डिंग में भी हम अपना किसान का पेट कैसे भर सकें। अगर आप वो नहीं करो, मुझे कई बार इन दिनों में 3 महीने में ना पेड़ी जलती है और किसान पर मुकदमे बनाओ। मैं ऐसा सोचता हूँ केवल कानून से किसी व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते हो, आपकी उसकी तह में जाना पड़ेगा कि ये जला क्यों रहा है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे इसका हल नहीं निकलेगा। और जो कुछ मैंने यहाँ 2-3 महीने में समझा, ये समझा पहले आपके यहाँ बुआई होती थी मई और जून में, फसल पक कर के तैयार हो जाती थी, सेकंड फसल बोने के लिए 1 महीने का समय मिल जाता था, आप उसको कहीं इधर उधर ठिकाने लगा देते थे। अब आपका 10 दिन का तो गैप मिलता है, उसको अगली फसल भी बोना है। अब वो क्या करेगा, या तो उसकी ऑल्टरनेट आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि उस पैडी का उपयोग कैसे हो। और आज की तारीख में ऐसे ऐसे नए नए प्रयोग हो गए हैं कि उसके कारण से फ्यूल बना सकते हैं, उसके कारण से और बना सकते हैं, कई चीज़ें बाई प्रोडक्ट उसमें से निकल गई। उसके लिए केंद्र सरकार ने मशीनें दी तो जरूर है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, इसके कारण से वो उसका उपयोग नहीं कर पाता। अब वास्तव में किसान ने इस जमीन को फर्टिलाइजर दे दे करके उसका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। और मैं सोचता हूँ कि जैसा आपका और मेरा स्वास्थ्य कैंसर पीड़ित हो रहा है, वैसे हमारी धरती भी कैंसर पीड़ित हो रही है। इस चुनौती का मुकाबला कौन करेगा? अगर अपन 2047 की बात करते हैं तो हमें तरीके तो निकालने पड़ेंगे जिससे उर्वरता बढ़े, प्राकृतिक खेती पर कैसे जाए, उस खेती से अन्न की पैदावार उतनी कितनी कैसे हो जैसे पहले होती थी, और उसकी आमदनी उतनी होगी तब तो उस पर आएगा, नहीं तो आप उसको केवल लाने का प्रयास करोगे तो नहीं आएगा। तो मैं सोचता हूँ कि हमको हर विषय पर, और खेती के पैटर्न के साथ साथ जैसे आपने कहा कार्गो, अब यहाँ सब्जियाँ बहुत पैदा हो सकती है, अगर कार्गो की व्यवस्था हो दुनिया के हर जगह, अगर अपन सब्जी बेचने की सक्षम हो जाए और स्टोरेज करने में सक्षम हो जाए, हमारा देश और हमारा प्रदेश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो आपको आखिर 2047 का जब लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य में उन सारे पायदान को तय करना पड़ेगा कि हम किस किस साल कहाँ तक जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं, तब तो जाकर के हम इसको करेंगे। मैं बचपन में जब पढ़ता था तब उद्योगों की दृष्टि से पंजाब नंबर 1 पे था, हमने पढ़ा। आज हम बहुत पीछे हो गए। कारण क्या है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। कम से कम पहली व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और आज के नौजवानों की बेरोजगारी को अगर अपन 2047 में लक्ष्य नहीं बनाएंगे और उसको पूरा करने का प्रयास नहीं करेंगे तो इस बच्चे का क्या दोष है? जब वो फालतू रहेगा तो फालतू काम करेगा। अगर आप उसको किसी काम के साथ जोड़ दोगे उसकी एनर्जी उधर लग जाएगी। मैं सोचता हूँ हमको इसके पॉजिटिव सोचना चाहिए तो उस यूथ को एंगेज कैसे करें। अब आज की तारीख में आपने स्टार्टअप और ये सारी जो बातें कही है, अगर इनका सबका प्रयोग होना शुरू हो जाए तो बच्चा अपना रोजगार स्वयं कर लेगा। सरकार पैसा तो देती है पर आखिर कोई तो भी आगे बढ़ने वाला तो चाहिए। तो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी सारी कॉलेजेज हैं, उनको अपने शिक्षा में कौशल को कैसे प्राथमिकता दी जाए ताकि रोजगार के लिए उसे इधर उधर नहीं भटकना पड़े, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपने आप 2047 ग्रो हो जाएगा। और अगर आप उसे काम नहीं दोगे, 10, 20, 50, 100 लोगों की जिंदगी को सुधारोगे तो भारत ग्रो नहीं कर सकता। भारत ग्रो करेगा जब 140 करोड़ लोगों की जिंदगी अच्छी होगी, तब भारत को गौरव मिलेगा कि हाँ हम 2047 में हैं। इसके बारे में छोटे-छोटे व्यक्तियों ने समझा दिया आपका मंतव्य क्या है, आप करना क्या है। एक एक वाक्य में उन्होंने जिस तरह से दुनिया समझा दी हो, मैं सोचता हूँ कि वास्तव में उन्होंने कहा था ये जो वायु है ना,
ये वायु जो है ये गुरु है, ये पानी है ये पिता है, और ये धरती हमारी माता है। इन शब्द में सब समझा दिया। आज भी अगर हम इसको समझ जाएं कि अगर वायु प्रदूषित होगी तो आप और हम सब कुछ ही दिन के लिए मेहमान हो जाएंगे। इसकी सुरक्षा करने के लिए भी जो तरीके हो सकते हैं 2043 तक। वैसे 2043 का लक्ष्य का मतलब तो यही है कि हर फील्ड में हर तरह का, अगर डेयरी है तो वो 2047 तक कैसे ग्रो करेगी, मछली पालन है तो वो कैसे ग्रो करेगी, अगर मुर्गी पालन है तो वो कैसे ग्रो करेगी, खेती को कैसे ग्रो करें कि वो 2047 तक हर व्यक्ति की आमदनी को कैसे बढ़ा सकती है, कौन से खेती को कन्वर्ट करें, कैसे लाएं तो होगा, उद्योगों का विकास कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई का विकास कैसे होगा, मेडिकल में हम किस तरह से आगे जाएंगे, खेल के क्षेत्र में हम कैसे आगे जाएंगे। पंजाब के अगर हिंदुस्तान की हॉकी की टीम में 7 खिलाड़ी अगर यहाँ के खेलते हैं, इससे बड़ा गौरव और खेल के मैदान में क्या हमारे बच्चे में दमखम है, उसको कराने की जरूरत है। तो हमारा लक्ष्य 2047 का जो खेल का मैदान है, ये बच्चे को डिसिप्लिन भी सिखाता है, और ये जो भेदभाव है ना, इसको मिटाने की ताकत अगर किसी में है तो खेल का मैदान है। ना जाति अड़ती है, ना उसका पैसा अड़ता, ना कुछ नहीं अड़ता। जिसमें काबिलियत होती है बाहर लाखों लोग उसकी तरह ताली बजाते हैं। तो मतलब वास्तव में हमको उस और बढ़ना पड़ेगा। हमें हर फील्ड का लक्ष्य तय करना पड़ेगा, केवल एक फील्ड का नहीं कि केवल उद्योग हो जाए। ये जो जलवायु परिवर्तन जो देश को दुनिया के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम बन गया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन में फेल हो रहा है, सारे के सारे जो है पिघल रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। आने वाला समय किस तरह का आएगा इसके बारे में तो मैं सोचता हूँ पहले सचेत केवल अकेला भारत नहीं, दुनिया भी इसके बारे में सोच रहा है। और हमारे बाप दादाओं ने हमें प्रकृति के बारे में पहले बहुत ज्ञान दिया। अगर मैं बचपन में किसी नीम की डाली को अगर दातन के लिए इतनी सी देनी है और मैं अगर पूरी डाली तोड़ लाता तो मेरी दादी है अनपढ़ थी, इतनी ये सारी डाली क्यों तोड़ी, पूरी जड़ तो इतनी सी थी, इसमें भी जान होती है, इसको इस तरह से नष्ट करने की चीज नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा बचपन से प्रकृति के प्रति प्रेम था, है ना। हमने नदियों को पूजा है, हमने पहाड़ों को पूजा है, हमने जानवर को पूजा है, हमने सांप को पूजा है। कौन सी चीज ऐसी है जिसकी हमने पूजा नहीं की? हम वृक्षों की पूजा करते हैं। मतलब यह कि हमारा सूर्य तो बहुत महान है, लेकिन हमने उसको आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को देने के लिए प्रयास नहीं किया। नई पीढ़ी को समझाने का ही प्रयास नहीं किया कि तेरे को करना क्या है। अब उस बच्चे का दोष निकाला तो वो क्या करेगा? जैसा वातावरण देखा वैसा वो आगे बढ़ गया। अगर उसे बढ़ाना है, आपकी और मेरी पहचान करनी हो तो मेरे दोस्तों की मित्र मंडली को समझ लो तो आप मुझे समझ जाओगे कि मैं कैसा आदमी। इसका मतलब आदमी को भी उसका वातावरण तैयार करता है, तो पेड़ को भी तो वातावरण ही तैयार करता है, फसल को भी तो वातावरण तैयार करता है। इन सब बातों को समझने की जरूरत पड़ेगी मैं सोचता हूँ। और ये जो हरित क्रांति है, जिस प्रकार का रसायनों का उपयोग हो रहा है, है ना, प्राकृतिक खेती के ऊपर धीरे धीरे आ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इन सब चुनौतियों का सबसे नंबर 1 की आवश्यकता देश की है तो है रोजगार। बाकी सब बातें उसके बाद आए। आदमी अगर काम पे लग जाएगा तो फालतू धंधे में लगेगा नहीं। वो काम ही नहीं है तो फिर वो ड्रग लाने का काम करता है, वो दोषी नहीं है। बड़े बड़े माफिया हैं जो धंधा करते हैं, ये तो केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं और सजा के फाकी ये हो जाते हैं। हमें अपने विचार करना पड़ेगा हमारे कानून के बारे में भी, कि जब तक मेन सोर्स का पता नहीं लगे तब तक उस अकेले को बाबर कुर्सी बेचने वालों को दंडित करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान करना है तो उसको अपने आप पर समझ करके करो कि मैं अगर हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, तब जाकर के समस्या का समाधान। अब यहाँ का नशे का जो प्रचार है चारों तरफ फैल रहा है। मेरे पास जो डेली रिपोर्ट आती है जो मुझे सरकार को भेजनी पड़ती है, उसका कोई दिन खाली नहीं जाता। अब इसे रोकने के लिए कानून नहीं रोक पाएगा,
इसको एक तरह से जनता को अवेयर करना पड़ेगा, इसी में से जगेगा। कम से कम जो आगे की पीढ़ी आ रही है स्कूल और कॉलेज में, उसे तो किसी तरह से इससे दूर करने का प्रयास करो, उससे कुछ तो कुछ समझ में आएगा। आप और मैं अगर इसमें नहीं पढ़ा तो इसका मतलब हमारे पुरखों ने हमको शिक्षा दी ना कि ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम नहीं कर पाते। तो मैं सोचता हूँ इस सारे वातावरण में केवल और केवल 5 और 10 लोग मिलकर के 2047 नहीं ला सके। 2047 लाने का प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने स्थान पर अपनी ताकत और अपना एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब हम 2047 जो भारत का सपना देख रहे हैं वो पंजाब भी पूरा करेगा। ये है वास्तव में इसका जो कंटेंट निकल कर आता है वो ये। तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, पर मैं आपसे कहता हूँ कि भगवान आपको दोबारा, मैं जैसा समझ पाया हूँ अब तक जिंदगी के 70-80 साल में, दोबारा इस शक्ल में भगवान आपको नहीं भेजेगा। समझ में ये जो कुछ शक्ल मिली ना, ये बड़ी उपलब्धियों के बाद मिली है। अगर इसका सही उपयोग नहीं कर पाए तो निरर्थक चले जाओ। आए हैं कुछ करें, भगवान ने हमारे को इतनी शक्ति दी है, समझ दी है, बुद्धि दी है। मैं सोचता हूँ हम तो पंजाब तो हमेशा देश का सिरमौर रहा है। सेना में कितने लोग हैं, आज की तारीख में हमारे बच्चे सेना में भर्ती हों, इसके लिए कोचिंग जगह क्यों नहीं बनाना। आज की तारीख में हमारे बच्चे अलग अलग सर्विस में जाएं, उनके लिए कोई सेंटर क्यों ना बनाएं जिसके कारण से वो बच्चे तैयार होकर के जा सके, है ना। आपका यूपीएससी या किसी जो सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है, स्टेट सर्विस है, उसके लिए वो अपने बच्चों को तैयार कैसे करें। जो पॉजिटिव काम करना पड़ेंगे तब उसका परिणाम दिखेगा, और केवल कुछ लोगों पर केंद्रित रहेंगे तो मैं सोचता हूँ वो सफलता हमको नहीं मिल सकती जिसकी कल्पना हम मन में बैठाए हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपने, मैं तो बहुत आश्चर्य करता हूँ कि आप जैसा व्यक्ति इतना समर्पित भाव से इस काम को कर रहा है। ये भी कोई समझ आपके पुरखों का कभी कभी अपने जितने समाज के धर्म गुरु हैं उनको सबको बुलाओ, मेरे राजभवन में बुलाते हैं। आप बैठ के विचार करें कि आज नशा की प्रवृत्ति पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे जन जागरूक कर सकते हैं, जनता को इससे कैसे जोड़ सकते हैं, बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं। मैंने आज बात आप बनाए, कोई 10-15 दिन मुझे भी आपके साथ पैदल चलना पड़ा तो चलूंगा, अभी मेरी शक्ति है इतनी, मैं 8-10 लोग और अपमानित लोग अगर रास्ते में निकलेंगे तो समाज का असर जाए बिना रह नहीं सकता। ये तो अभी तक अपने संतों की वाणी में दम है, उनके जीवन का करिश्मा है कि हम और समाज बहुत आसानी से उसको फॉलो कर जाता है। तो मैं सोचता हूँ इस बारे में आप करें कोशिश, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं ये जरूर महामहिम के पद पर बैठ गया हूँ, पर मैं ये पद स्थायी नहीं है, मैं स्थायी सोचता हूँ कि जो मैं स्थायी हूँ उसको ही मैं अपने अंदर जिंदा रखूँ। ये टेम्पररी पोस्ट आएगी और चली जाएगी, इससे कोई मेरी पहचान नहीं बनेगी, मेरी पहचान मेरा काम बनेगी। इस बात को सोच करके आपकी सबका आशीर्वाद और आप सबका सहयोग मिलेगा जरूर कुछ करने का। आपने कई विषय गिना दिए, आप आइए कहीं बैठिए, उन विषयों पर अपन क्या कर सकते हैं, बैठ करके कैसे हल निकल सकता है, क्योंकि मैं भी कोई परफेक्ट आदमी तो हूँ नहीं। मैं मानता हूँ कि सबके सामूहिक सोच के आधार पर मैं भी आगे बढ़ूंगा आपके साथ, पर मैं ये निश्चित है कि निश्चित रूप से इन सब बातों को जो आज हमारे सामने चुनौती के रूप में और 2047 तक वो यात्रा पूरी करनी है, उसमें मैं आपका सहयोगी बनकर के आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। धन्यवाद। खड़े होकर जोरदार तालियां बजानी चाहिए। कुछ मुझे शब्द करने नहीं है हमारे बीच हमारे सम्मानीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब कम्युनिटी चंडीगढ़। ये जो बातें आप सर ने यहाँ पर आप सभी के समक्ष करी हैं, हर एक बात हर एक लाइन में इतनी ताकत है, इतना दम है। अगर हम सब एकजुट होकर इसे करने पर हो जाए, तत्पर आ जाए तो क्या नहीं हो सकता। Ladies and gentlemen, I request everybody to please settle down quickly, as it's the time to pay gratitude
as it's the time to give a vote of thanks. And I would like to invite out here on this podium the Registrar, Punjab University, Chandigarh, Shri Y.P. Verma ji. एक बार जोरदार ताली। Honorable Governor of Punjab and Administrator of Chandigarh, Shri Gulab Kataria ji, respected Vice Chancellor of Punjab University, Mr. Mike Redbridge, esteemed Shri Amar Singh Dewal ji, Honorable MP of Rajya Sabha, Mr. Ritan Singh Sani ji, distinguished organizer of this summit, and all other esteemed guests, delegates and participants. I stand here today with a heart full of gratitude and respect as we conclude what has been an enlightening and purposeful summit on the future of Punjab. We are deeply grateful for gracious presence and insight of our esteemed Chief Guest and Honorable Governor of Punjab and Administrator of Chandigarh. Your words have really underscored the importance of resilience and vision as we work towards Punjab's growth and welfare. Your guidance adds immense value to our collective efforts, sir. I would like to mention here the initiative that we have taken few weeks ago, where we organized the conference of all the Vice Chancellors of the University of Punjab, and we deliberated about 2 days continuously. We said for full 2 days there, and there were some points mentioned how to improve and uplift the academic and research standards in the universities of Punjab and how to make education accessible. That shows his vision and commitment towards the education of the Punjab. So thank you so much, sir. A heartfelt thanks to you for Madam Renovich, who has always provided us a continuous sport and gracing the event today. My sincere thanks to Shri Amarjit Singh Dewal ji for his thought-provoking ideas that he mentioned. He made us realize our true potential and what Punjab can do. And he mentioned the root of progress goes only through the development of the villages. And he also gave an example that how successfully Punjab has led the Green Revolution. And the important point that he mentioned, the future of youth of Punjab will depend upon the education system that we have here. Mr. Ritan Sani, the visionary behind this summit, we thank you for creating this platform, for your commitment to Punjab's progress, sir. Your efforts in organizing this event has brought together leaders, thinkers, administrators, and industrialists who are dedicated to the state's development and making this summit a grand success. In our discussion during the last 2 days, we explored significant areas: governance in Punjab, crisis in Punjab, agriculture and industrial development, brain, anchoring the workforce within Punjab, Punjab's roots and rivers, and charting a future's roadmap. Each topic was thoughtfully discussed, and the ideas shared have the potential to lead us forward in an impactful way. From strengthening Punjab's governance framework to revitalizing agriculture and advancing the industries, the dialogue has set a clear direction for the development. We are immensely grateful to each participant and speaker who has contributed their time, knowledge and expertise to this summit. Your ideas have led the foundation for action-oriented strategies and collaborative partnerships. As we move forward, let us carry the spirit of today's discussion with us, working together to build a vibrant, prosperous and inclusive Punjab. Once again, thank you all for who have made the summit possible and to all who contribute to the success of this event. Thank you, and let us look forward for a brighter future of Punjab. Jai Hind. दोस्तों, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे पहला पंजाब विजन 2047। आज ये 2 दिन की पूरी कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, और आई एम श्योर कि आप सभी इस बात से जरूर अग्री करेंगे, कि देखना है तो देख तीर को, ना देख कमान को। परखना है तो परख इंसानियत को, ना परख इंसान को। और अगर देखना चाहते हो पंजाब की उड़ान को, मैं कहती हूँ दिल्ली, पंजाब, हिमाचल तो क्या पूरे विश्व से ऊंचा कर दो उस नीले आसमान को। वो दिन वो पल अब दूर नहीं है कि जो पंजाब विजन हम देख रहे हैं आज यहाँ,
हर एक बात का, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन निकल के सामने आएगा। और इन सभी खास डिग्निटरीज के लिए तहे दिल से धन्यवाद कि इतनी मेहनत करके इस दिन को पॉसिबल किया। मैं आप सभी से चाहूंगी कि जिस जगह आप बैठे हैं वहीं पर खड़े हो जाएं नेशनल एंथम के लिए। भारत माता की जो बोले सो निहाल। और इसी के साथ साथ मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूटी चंडीगढ़ श्री गुलाब चंद कटारिया जी, सम्मान्य योगी, जिन्होंने हमारे बीच आकर इस खास पल को और खास बना दिया। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगी जिन टॉपिक्स पे आज बात की गई और कल बात हुई है, मैं चाहती हूँ तुम सारे ना गला को गौर जरूर करो कि कोई सोल्यूशन अगर कोई कर सकता है तो साडा यूथ है। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर यूथ, सो जस्ट मेक अस ऑल प्राउड फॉरएवर। एंड विद दिस योर होस्ट इश्मी फॉर साइंस ऑफ। थैंक यू सो मच।